Really excited to start what is going to be an incredible partnership with UP Warriors for this season of the Women's IPL. I'm especially excited for what we are going to be doing today, which is having a conversation around some really important topics. Did you know that online women are the largest targets of negative comments and trolling? Now, I'm not surprised by that because on social media, we constantly see women being talked about and especially hated on for their looks, for their physicality, even for their careers and their professions. And that's something we are going to be discussing today with three players from the UP Warriors team who I am extremely excited to talk to. I think these three have had a really, really great life experience, a great professional career, but even more importantly, I think that they have such strong individual personalities, which is what I want to dive into a little bit more today. So I hope that you enjoy this conversation, which is going to cover things around their personal experience playing cricket professionally. We're going to talk about trash talk cleanup, which is something that I hope that all of us can take away from this conversation, which is how can we encourage positivity on social media and especially combat some of the hate that our female athletes get during and on and off season. So let's go straight into the conversation. I'm super excited to be talking to Poonam, Vrinda and Gohar. तो अभी सीजन शुरू होने वाला है यूपी वॉरियर्स का. तो इस सीजन में आप सबसे ज्यादा किस चीज के लिए एक्साइटेड हो या व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? मतलब इस सीजन में मतलब ये करना है हमें, वो एक चीज क्या है जीतने के अलावा? ऑब्वियसली पहली चीज तो ट्रॉफी है. ट्रॉफी. उसके अलावा क्या मतलब एक्सपीरियंस में भी आप लोगों का इतना एक्सपीरियंस है क्रिकेट खेल के, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आप लोग इस टीम के साथ जुड़े हो या इस विमेन्स आईपीएल का भी क्रेज ज्यादा बढ़ रहा है अभी लास्ट सीजन से इस सीजन इट्स बिकम इवन बिगर. तो आप लोग ऑब्वियसली एक्साइटेड हो, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस सीजन से? I think I'm very excited for the atmosphere that it's going to be in the stadium. Like जो WPL का first season था, I went to watch because I was not part of it, so I went to watch a game and the atmosphere was amazing. So just to be a part of it, I'm very excited for it कि वो atmosphere कैसा रहेगा वुमेन्स आईपीएल के लिए, क्योंकि पॉपुलैरिटी फर्स्ट सीजन के लिए इतना शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट वाज अ ह्यूज हिट बॉम्बे में. तो इस बार मोस्टली उससे ज़्यादा ही रहेगा. I'm looking forward to rubbing shoulders with our international overseas players and looking forward to some dressing room fun and on the field fun. Yeah, of course, lot of things to learn from them. Number one bowler Sophie Ecclestone हमारे साथ है. Strong team है बहुत आप लोगों की. Very strong team. So it was like a very good experience with them. लेकिन अभी एक्साइटमेंट के साथ नर्वसनेस भी फील हो रहा होगा, क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि अभी लास्ट सीजन से इस सीजन इट्स बिकमिंग बिगर, द लीग इज बिकमिंग बिगर, जितने लोग देख रहे हैं आप सबको वो भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है. तो क्या वो नर्वसनेस होती है गेम के पहले कि इतने सारे लोग देखने आ रहे हैं हमें स्टेडियम में, टीवी पे देख रहे हैं? अभी आप तो रील्स में सुपरस्टार रील्स पे भी देख रहे हैं आपको, तो कभी वो प्रेशर फील होता है कि अरे इतने लोग हमें देखने वाले हैं गेम खेलते वक्त और हम पे इतना कुछ है कि सिर्फ टीम को नहीं लेकिन विमेन्स आईपीएल को आगे ले जाना है? तो वो कभी आता है दिमाग में मैच के पहले कि अरे स्टेडियम भरा होगा, इतने लोग आएंगे? I mean, it does, obviously. It does. Even the previous day or probably when we get down the bus, when we expect a huge crowd and when we walk in, there's a lot of expectation and we do feel it at times, but it's something that's why we love to play the sport also. That feeling is a different feeling that we don't get anywhere else. So. You have a tattoo on your arm. You were telling me about it yesterday. What is it? Can you tell me what it means? So I've got a tattoo that says that the mind is greater than feelings. Just like this, like the question you just asked, where expectations and things. Sometimes nervousness hits us, and it doesn't allow us to do a lot of things. But then it's the mind that tells us, it's okay, just go ahead. Things will happen. You've practiced, you've been there. I try and make probably let the mind take over more than the feelings does. So. And what does your mind tell you when you walk onto that field? Now, for the past few days, it says just go and enjoy. I've been having a great time here at UP Warriors, so I'm looking forward to just enjoying on the field. I'm sure things will fall right in place. So you are not being pressurized by the expectations? No. You are not scared कि कोई भी जो भी बोले, जो भी pressure है, you have none. You're just excited to play. I'm just excited to play.
That's good यार, मुझे भी सिखाओ प्रेशर, मुझे रोज प्रेशर लेती हूँ मैं लाइफ में, I'm like I don't know how to not live up to expectations, वो हमेशा होता है। आपको लगता है नहीं, आपको भी Of course, आप nervousness. actually बहुत ही confident हो, like when I first met her also yesterday, I was like कि oh my god, like she is so confident कि मैं मिलके I was like मुझे भी confidence आ गई, मैं रूम में गई ऐसे like She does have that vibe. yeah, she does has a that very energy. contagious Yeah. vibe, मतलब इतना confident, I'm sure कि आप आधी टीम को confidence देते हैं। She's always happy. Of course, Yeah. सबको ऐसा नहीं है कि सबको थोड़ा सा नर्व्स रहते हैं मैच से पहले। जितने आप मैचेस खेलते हो उसके बाद थोड़ा सा नर्व्स आपके कम हो जाते हैं, और जैसे कि वॉकिंग इन द ग्राउंड, सो उसके बाद पूरा एक्साइटमेंट अंदर रहता है। सो बस वी आर जस्ट गोइंग एंड एंजॉयिंग आवर गेम, दैट्स इट। पर आप ऐसे कॉन्स्टेंटली ऐसे कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आई डोंट नो, नाउ इट्स इनबिल्ट। तो कभी आपका Born with कॉन्फिडेंस it. ऑफ नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि Born with आपको it. लाइक लो कॉन्फिडेंस हुआ या सेल्फ एस्टीम डाउन हुआ, या आप हमेशा 100 on 100? No, not at all. It's always Getting up, there. it's always up and downs. ऐसा नहीं है कि कभी up and downs. It's all about sports. तो जब भी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप किसी भी स्पोर्ट्स में खेलते हो तो हमेशा अप एंड डाउन्स रहते हैं। तो इसमें से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। तो दिस इज़ द एक्सपीरियंस जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो मुझे लगता है कि जितना आप मैचेस खेलोगे, जितना आप यहाँ पे रहोगे, अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलते हो, तो यही कॉन्फिडेंट आपको दिखता है जब आप वॉक इन करते हो। तो ऐसा मोमेंट कभी हुआ है पहले आपके पहले एक्सपीरियंसेस में जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस टूट गया था? ऐसा कोई भी सिचुएशन हुआ है जहाँ पे अभी आप ऑब्वियसली आपने उन एक्सपीरियंस सीख के अभी आप बोल रहे हो कि मेरा कॉन्फिडेंस मैं उससे सीखी हूँ, बट ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ है कभी आपके लाइफ में जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन गया? या ऑफ कोर्स, जब स्टेट लेवल पे खेलते थे तब टीम में कभी कभी जगह नहीं बन पाती थी, कभी बाहर रहते थे, 11 में नहीं खेल पाते थे। सो ऑफ कोर्स ये बहुत सारी चीज़ें, अभी 10 साल से क्रिकेट खेल रहे तो जो स्टार्टिंग के 2-3 साल होते हैं, 3-4 साल होते हैं, वो डिफिकल्ट होते हैं हर एक प्लेयर के लिए। नॉट मी, मुझे लगता है कि सारे प्लेयरों के लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं जो अपने अपने स्टेट से खेलते हैं। सो डेफिनेटली जब भी हम खेलते हैं तब बाहर इन आउट होते रहते हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं, कभी बैटिंग अच्छी होती है, बॉलिंग अच्छी होती है, कभी नहीं होती है। तो ये सारे एक्सपीरियंस हमें एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं, एक थोड़ा सा ग्रो करते हैं, हम क्या इसमें बेटर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स अप एंड डाउन्स है, लेकिन उसमें से बढ़कर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ग्रो करके हम आ गया। हाँ, अब तो आपको देखे मुझे कॉन्फिडेंस है। शी शुड बी होस्टिंग, मैं होस्ट कर रही हूँ, आप होस्ट करो। लेकिन आपके लिए आप यू हैव लाइक द मोस्ट experience, you have played cricket for internationally, you've been playing for so many years, and same question ke you're coming back now to play this season of women's IPL, aapko kaisa lag raha hai? And the same thing, jaise ki Vrinda also said, she feels, of course there are expectations, but she's excited. What are you feeling, because you're coming back now, and like I think forget इन क्रिकेट, आई थिंक औरतों पे जब भी वो लोग वापस कुछ चीज करने को आते हैं ना, देयर इज ऑलवेज एन एक्सपेक्टेशन कि क्या ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या कर भी पाएगी तो कैसे कर लिया, देयर आर ऑलवेज क्वेश्चंस। आई फील कि जब भी औरतें कुछ सक्सेसफुल करती हैं, दे डोंट जस्ट ब्लाइंडली बिलीव कि हम ये कर सकते हैं, सो do you feel कि you're going to get those questions? Of course. See, मैंने जब इंटरनेशनल लास्ट खेला है, it was way back in 2014. तो उसके बाद इस ऐसे थोड़ा हायर लेवल पे this is the first time like I missed out on WPL 1. मेरा ये था कि I didn't want to give up. Like I always played cricket. I wanted to play cricket because ये मेरा passion है. This is the thing that I enjoyed doing. Of course, there were years where there was a lot of pressure on me. Maybe I put myself under a lot of unnecessary pressure, saying कि अभी comeback करना है, या लो एज हो रही है, तो this our society, our culture is that कि 30 के बाद you're out, and आप उतना जितना आप यंग होते हो उतना आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती. So all these things, of course, they played in my mind. But the only thing kept me going is कि ये passion and love for the game. उस चीज़ के लिए if I wanted to play the game, मेरे को fit रहना है. So I wanted to just prove to people that age is just a number. Like everybody says it, but to go through it requires a lot of discipline and commitment towards whatever you're doing. So I tried to do that, and अभी भी questions है mind में, but there's more excitement than pressure. क्या questions है mind में?
yeah, you know, थोड़ा सा doubts है कि you know I've come after a long gap and this is a T20 high intensity game है and there are a lot of expectations. Like I said, WPL मैंने watch करा है. There are a lot of people watching. वो थोड़े से doubt होते हैं कि क्या मैं कर पाऊँगी. But more than that, now I just want to enjoy being there, enjoy the atmosphere. You know, we have exceptional coaches with you know John or Anjudi. Anjudi I've worked with. तो वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं. डोंट मेक अस फील लाइक यू नो आप थोड़े से यू नो ओल्ड हो या वट एवर इट इज़. वो मेरे को यहाँ पे ऐसे ही फील आ रहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अ यंगस्टर जो वॉक इन करता है एंड वो एटमॉस्फेयर वो सेटअप जो होता है वो यहाँ पे है. एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यू नो थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट. एंड यूपी वॉरियर्स का जब मैं ट्रायल्स के लिए आई थी आई वांट टू टेल यू दिस कि मैंने 2 जगह ट्रायल्स दिए थे बट दिस एटमॉस्फेयर वाज द लाइक आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड. बहुत इजी एटमॉस्फेयर है. पीपल आर लाइक द स्टाफ इज सपोर्ट स्टाफ इज वेरी फ्रेंडली. इवन जिनिशा शी इज़ द ओनर बट वो लगता ही नहीं है. शी इज़ मोर लाइक अ फ्रेंड. आई जस्ट मेट हर फॉर 2 days एंड बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं. सो दैट्स व्हाई नाउ द माइंडसेट इज देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट दैन नर्व्स. I think आपकी young energy से बाकी young players ज़्यादा encourage हो रहे हैं. I don't think it's the other way around. Like आपको भी मिलके it's like she is the most energetic person. But आपने जैसे बोला कि society में जब लोग बोलते हैं like come back, आपने जो word use किया come back. I think cricket में especially या किसी भी field में जब एक आदमी का so you know after a certain age जब बोलते हैं कि अरे उसका come back हो रहा है सब लोग बहुत excited हो जाते हैं you know कि oh he's coming back और there's so much excitement and happiness. But like you said कि जब एक औरत एक certain age के बाद एक प्रोफेशन में या फॉर एग्जांपल क्रिकेट में वापस आ रही है तो देयर इज ऑलवेज क्वेश्चंस कि क्यों आ रही है, कर पाएगी, विल शी बी एबल टू प्ले एट द लेवल शी वाज प्लेइंग बिफोर. पहले तो मुझे इस चीज पे गुस्सा आता है बिकॉज आई डोंट नो व्हाई कि ये सवाल उठते क्यों हैं फर्स्ट प्लेस में. When it is not happening for the men, when you don't question men, why do you have to question women? Questioning the ability. हर चीज एज के ऊपर आती है, हर चीज जेंडर के ऊपर आती है. लेकिन अगर कोई विदाउट जेंडर को हटा के बोले कि अरे क्रिकेटर कम बैक कर रहा है, देयर शुड बी एक्साइटमेंट अराउंड इट. तो आपको लगा कि लोग एक्साइटेड हैं सुन के कि यू आर कमिंग बैक नाउ एंड यू आर प्लेइंग दिस सीजन ऑफ? है बहुत सारे लोग हैं. आई हैव गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस. बहुत सारे लोग जो भी मिलते हैं दे आर वेरी हैप्पी यू नो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप. पीपल अंडरस्टैंड लाइक एटलीस्ट पीपल हु नो मी understand what it takes to you know come back after a very long gap. So है बहुत सारे लोग जो believe करते हैं कि I can still do it and that you know kind of motivates me also. अच्छा करने के लिए wherever I am and whatever I'm doing. मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि it is not about the age. It is about how much you believe in yourself and how much you believe in what you can become or what you want to become. So that belief if you have, you don't have to care about who thinks what about you. So I believe in that and I've you know I think you are you'll be killing it this season. Thank you. But like reverse भी होता है right? Like in her case the people or sometimes society question करेगी कि अच्छा एक certain age के बाद जो questions उठते हैं but below a certain age also वो भी एक अलग type of judgment होता है right? कि आप इतने young हो और इतनी young age में आप क्रिकेट खेल रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, अभी यू नो इतने सारे लोग आपको टीवी पे देख रहे हैं. सो देयर इज आल्सो क्वेश्चन लाइक जब मैंने भी आइडिया सुना था कि आई वांटेड टू स्टार्ट माय पॉडकास्ट तो लोग बोलते थे कि अरे आप इतने यंग हो, आपकी क्या एक्सपीरियंस होगी, आप बात क्या करोगे. डू यू गेट दैट? डू यू गेट पीपल सेइंग कि अरे इतने कम एज में आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो? एंड जब वो एक्सपीरियंस वाला वर्ड फेंका जाता है हम पे एटलीस्ट मेरे लिए बहुत प्रेशराइजिंग होता है क्योंकि देन ऐसा लगता है कि अरे यू हैव टू लिव अप टू एन एक्सपेक्टेशन या आपको कुछ डिलीवर करना पड़ता है और अगर आप वो नहीं कर पाते हो देन पीपल आर लाइक हाँ बोला था ये 21 साल की उम्र में क्या ही कर लेगी. आपने कभी ये सुना है और अगर सुना है तो कैसा आपका रिएक्शन क्या है उसके ऊपर? I mean, people are there to comment, but we've gotten here based on our talent, the hours we've put in, and I don't think, you know, these comments, we're supposed to just take it and probably ignore it because we know what we're capable of and, you know, why we've been picked by, you know, a particular franchisee and probably what we can do for the franchisee. So that's something we should probably just stick to, just focus on what we can do and why we've gotten here and probably just let the world think what they want to think. So self-belief. You don't care what people say. Yeah. I mean, I'm the one who's put in the work. Yeah. Like,
That's how it should be. Yeah, that's how it should मैंने काम डाला, मैं पहुंची खुद के दम पे, आपको मुझे बता दिया. आपको भी सेम लगता है? Yeah, I think I believe in process always. Result is always byproduct. So हम जो भी करते हैं, जो भी process रहता है, उसी से हमें results मिलते हैं. So मुझे लगता है कि जब भी हम अपने hard work पे believe करते हैं, जो भी process पे believe करते हैं, तो हमेशा हमें एक अच्छे results शायद कभी नहीं भी मिले तो हम उसको experience में convert करके वो मिल ही जाते हैं end of the day. तो मुझे लगता है कि I'm always believe in process. आई थिंक आप तीनों ने सेम आंसर दिया है इन द सेंस कि आपका जो टीम एंथम भी है उत्तर देगा. इट्स लाइक यू आर सेइंग कि मेरा जो गेम है, मेरा जो टैलेंट है, वही आपको जवाब देगा, आपके सारे क्वेश्चंस को, आपके सारे डाउट्स को, तो वही उत्तर देगा. आप लोग जो भी बोल रहे हो मेरे बारे में, इट्स माय टैलेंट, माय एबिलिटी, तो आई थिंक कि आप लोगों का एंथम बिल्कुल एप्ट है. सारे बोल रहे हैं कि हम अपने गेम से जवाब देने वाले हैं. बट आपने बोला कि मतलब अभी जैसे कि आप लोग को सब टीवी पे भी देखता है लोग, लेकिन सोशल मीडिया भी अभी बहुत तेजी से रियल सुपरस्टार बैठे हैं हमारे बीच में, पार्ट टाइम क्रिकेटर, पार्ट टाइम रियल सुपरस्टार. बट सोशल मीडिया पे भी अभी बहुत चर्चा हो रही है. आप फॉरगेट क्रिकेट के बारे में, आई थिंक जस्ट स्पोर्ट्स को लेके भी, स्पेशली वुमेन स्पोर्ट्स जो है उसको बहुत अटेंशन मिल रहा है. लास्ट सीजन में भी बहुत अटेंशन मिला था लीग को जब सीजन चल रहा था, और बहुत लोग बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत इन्वेस्टेड थे गेम में, लेकिन लोगों के पास बहुत बोलने के लिए भी था, इन द सेंस कि अगर कोई जीत रहा है तो उसके ऊपर कमेंट करना है, अगर कोई हार रहा है उसके ऊपर कमेंट करना है. आज की दुनिया में तो सब लोग हर चीज पे कमेंट करते हैं. आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, आप कैसे खेल रहे हो. तो आप लोग सब सोशल मीडिया पे, यू तो ऑफ कोर्स क्या है, सब लोग सोशल मीडिया पे. पर पहले आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है सोशल मीडिया के साथ? लाइक फॉर एग्जांपल मैंने जब शुरू किया था मेरा सोशल मीडिया पेज, तो मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे काम के बारे में मैं ज्यादा बात करना चाहती थी. आई डिडंट वांट कि मेरी पर्सनल लाइफ या जो मैं पर्सनल लाइफ में कर रही हूँ, आई वांटेड मोर कि मेरा सोशल मीडिया मेरे काम को या मेरे करियर को ज्यादा विजिबिलिटी दे. तो क्या आपको लगता है कि क्रिकेट में भी सेम वे जैसे गेम फील्ड पे भी होता है, लेकिन अभी इतना कुछ प्रेशर आ रहा है कि ऑफ फील्ड पे भी एक पर्सोना मेंटेन करना या एक आइडेंटिटी क्रिएट करना सबके लिए, तो आपको वो प्रेशर फील होता है कि आपको लगता है कि सोशल मीडिया को यूज करना पड़ रहा है अभी आप लोगों को अपने ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए, या अपने गेम के बारे में बात करने के लिए, या जो भी पर्सनली भी शेयर करना होता है? डू यू डू दैट ऑन योर सोशल मीडिया? No, I don't do a lot of personal stuff. Like जो भी मेरे workouts होते हैं या gym sessions होते हैं या cricket session होते हैं, it's more about that. And हाँ, few जब हम tours पे जाते हैं तो there are off days when we go around and look around, जो भी explore करना है वो करते हैं. तो वो बहुत थोड़ा बहुत I'm not a very obviously I belong to a different generation, so I'm not a very social media. My mom is on social media. Yeah, she's okay, I'm also on social media, but I'm not very keen on being active on it. But yeah, वो करने के लिए I do a bit when वो मेरे phases होते हैं when I am very active on social media and then when off and then I'm off it. So you don't feel that pressure to like build your social media persona या वो Not really. Actually, मेरे को बस ये लगता है कि I want to play the game, enjoy the game, and just whatever I can give a message through my profession, through my game, वो मेरे को करना है बस. Otherwise, I don't want to, I don't want people to on social media to know about my personal life or stuff like that. But हाँ, अभी करना it's become more popular now. So वो करने के लिए I'm there, बस उतना ही. So you're happy to do it. Yeah. And superstar of the real world. Yeah, I find it important not to post personal life on social media, but I also find it really important to post things about how I'm playing, or certain videos of a particular shots or my gym workouts or things like that, because I feel women's cricket in India is not that very visible. There are a lot of things that happen behind the scenes, and we do need a platform to showcase how talented we are and what we are capable of. I'm sure there are a lot of people in the country who are not, they don't have access to such things, but they do have a lot of talent. So probably social media like this is, a very helpful platform for a lot of people to, put up things of what they're doing and how could they get wherever they want to be. And I think it's a nice platform to have in terms of, having your
showing your Yeah. careers in. So you feel कि it's also important because it's giving visibility to women's cricket. Yeah. तो the more you post, लोग ज़्यादा देखते हैं तो you know ज़्यादा visibility मिलती है. Not just to you as an individual athlete, but also to just the sport in general. Yeah, for the sport in India especially. So, you know, people get a little more aware of probably there are state games happening which are not televised. But, you know, for a few boys, you know, the men's game, even their league games are televised. Televised, yeah. Ours is probably one game in, you know, an entire season. And if you don't do well that game, you know, people start commenting, say you're not good. But probably previous to that, you would have gotten your team to the finals, which is a big thing. So I do feel, you know, it's very important to build that visibility in India for the women especially. Yeah. आपको इतना बोल दिया कि मेरे को कुछ रखा ही नहीं बोलने के लिए। सब तो बोल दिया मैं क्या Of course, इतना इम्पोर्टेंट सारी चीजें तो बोली थी उन्होंने, फिर भी इट्स लाइक मोर इम्पोर्टेंट कि यार नाउडेज सोशल मीडिया इज रियली इम्पोर्टेंट कि हम क्या करते हैं, क्या रूटीन फॉलो करते हैं। हम लोग भी लाइक मैं भी किसी बहुत लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं डेली रूटीन में, हम उनके बारे में फॉलो करके उनसे क्या मिल सकता है। सो लाइक नाउ हम कुछ मिल जाता है, जब किसी को कुछ मिल जाता है या कुछ लेवल अचीव करने के बाद ही लोग आपको फॉलो करते या देखते हैं। सो आई थिंक जब आप कुछ करते हो वो उसके पीछे का जो भी बैकग्राउंड होता है, जो शायद हम भी किसी को देख के सीखे, तो शायद हम भी वो कभी कभी मुझे भी अच्छा लगता है पोस्ट करना जो भी हमारा रूटीन होता है। सो समहाउ अगर मैंने कुछ पोस्ट किया है तो शायद वो उससे कुछ मोटिवेशन या कुछ मिले। तो जब भी मैं सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करना चाहती हूँ तो आई थिंक उसके पीछे कुछ रीजंस होता है कि हाँ कि एटलीस्ट मैं कुछ पॉजिटिव पोस्ट करूँ, कुछ थिंग्स जो लोगों के लिए काम आए। वही आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड पॉजिटिविटी। यू नो सोशल मीडिया पे हम लोग सब हैं, हमने सबके पब्लिक प्रोफाइल्स है, सबने पॉजिटिव कमेंट्स भी बहुत आते हैं। फील के एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर यू नो आपके फैंस या आपकी ऑडियंस बहुत प्यार मिलता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन एक अलग साइड भी है सोशल मीडिया का जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी होती है, बहुत ट्रोलिंग होती है या बहुत ऐसे कमेंट्स होते हैं जहाँ पे यू नो लोग बहुत पर्सनल हो जाते हैं। यू नो या तो वो हमारे लुक्स के बारे में बात करते हैं या बॉडी के बारे में या कभी कभी करियर के बारे में, परफॉर्मेंस, गेम, इतनी सारी चीज़ों के बारे में। एक अलग भी साइड है सोशल मीडिया का। आपने कभी नेगेटिविटी एक्सपीरियंस की है सोशल मीडिया पे, और अगर की है तो उसको हैंडल कैसे किया है? पर्सनली जब कोई बात करता है यू नो मेरे लुक्स के बारे में या मेरे बॉडी के बारे में, तो वो मैं बहुत पर्सनली या सेंसिटिव हो जाती हूँ उस चीज़ के बारे में। है पर्सनल चीज़, यू नो स्पेशली एक औरत के लिए अपने लुक्स पे जब कोई कमेंट करे तो वो बहुत ही पर्सनल और अफेक्ट होती है। मुझे तो जरूर बहुत इफेक्ट होता है उससे। बट आपको क्या लगता है, आपने कभी नेगेटिव कमेंट्स फेस किए तो किस टाइप के कमेंट्स यूजुअली? मैंने तो पर्सनली इतना अभी एक्सपीरियंस कुछ नहीं किया है नेगेटिव, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे लाइक सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे स्पोर्ट्स पीपल होते हैं जो दे गो थ्रू इट, तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं लोगों से। बट मेरे को बस ये है कि एक चीज़ आप जब अगर सोचोगे कि आप जो कमेंट कर रहे हो, अगर वो आपके ऊपर कोई कमेंट करता है तो हाउ डज इट फील? इफ़ पीपल रियलाइज दैट, तो फिर मे बी वो थोड़ा सा कम हो जाएगा लोगों का कि आप तो ऑफ कोर्स आपको बोलने के लिए टैक्स नहीं है यहाँ पे, तो लोग बोल देते हैं कुछ भी। हाँ, तो वही एक चीज़ है कि व्हेन यू आर सेइंग समथिंग, वो चीज़ इफेक्ट करती है एज स्पोर्ट्स पर्सन। जितना भी हम अवॉइड करें, जितना भी हम मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने का ट्राई करें, एक आधा चीज़ जो होती है वो इफेक्ट बिल्कुल करती है हमारे गेम पे। सो आई जस्ट थिंक कि पीपल को थोड़ा सा वो उनको सोचना चाहिए कि ये लोग भी ह्यूमंस हैं, स्पोर्ट्स पीपल भी ह्यूमंस हैं, सेलिब्रिटीज़ भी ह्यूमंस हैं। तो उसके हिसाब से अगर लोग करना स्टार्ट करें तो मे बी ये थोड़ी सी चीज़ें कम हो सकती हैं। कभी हुआ है नेगेटिव कमेंट्स, कभी पढ़े खुद के बारे में? अभी तक तो नहीं, मतलब I hope not also, but you know there have been times where you want to post a personal picture of you looking good or you know some place you've been to, but you think twice because one you want to post, but you also think in terms of how the world is going to see. You know, why is she roaming? Why can't she go and practice? And you know things like that. Wearing? What is she wearing? Why is she dressed up like She's this? a sports person. वो टैग लग जाता है ना कि अगर आप एक बिजनेस वुमन हो तो आप यही कपड़े पहन सकते हो, अगर आप एक स्पोर्ट्स वुमन हो तो आप यही कपड़े पहन सकते हो, अगर आप कुछ और पहनो तो अरे बट व्हाई इज शी वेयरिंग फोकस नहीं है। और अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो व्हाई इज शी नॉट प्रैक्टिसिंग, शी इज लूजिंग फोकस और शी इज नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन द गेम। तो ये सब भी आता है, लाइक मुझे आता है कभी कभी, लाइक यू नो व्हाई इज शी वेयरिंग दैट, शी इज अ यू नो एंटरप्रेन्योर। बट
why not? क्यों नहीं? Why Why not? can't I break that stereotype Exactly. of what you know, लोगों के जो दिमाग में वो image होता है ना कि एक athlete को ऐसा ही होना है. I think कि आप तीनों ने वो break किया because you've gone above that, right? You said कि yes, I'm an athlete, but I'm also my own person and I'm also a Exactly. woman. और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या tag लगाया मेरे ऊपर. मुझे उसको तोड़ के, like you said कि I feel कि कभी-कभी personal pictures post करने के time भी you think twice. I think all of even I think 100 times twice. I think 100 times because I'm like अरे पहले कपड़े पे comment करेगा, फिर face पे comment करेगा, फिर body पे करेंगे, फिर ये बोलेंगे. And I'm like, छोड़ो posting करते हैं, forget it. But do you feel के are you more like when you think twice about posting something, are you more scared of what they will say about you professionally or like physically wise? Like, will they comment on your looks or your like game or your performance? Like, what scares you more? What makes you doubt yourself from posting that picture? I think it's both in terms of looks, you know, because I'm an athlete, you know, body is a little stronger, you know, certain clothes don't fit. So probably that is one. And, you know, in also terms of my career where, you know, people comment on why is she eating this? It might be my cheat day. It might be, you know, I've slogged the entire month. There's one cheat meal that I want to have. And it's something I want to post. I've worked for so long and, you know, I deserve that meal. Why do people have to comment? So, you know, I think especially जब women athletes को देखे, like you said कि you know आपका build अलग होता है and कभी-कभी लोगों को वो समझ में नहीं आता है कि why is that the case, right? क्योंकि जिस तरह से आप लोग train करते हो या जिस तरह से आप लोग field में भी खेलते हो, लोग बहुत comment करते हैं कि अरे you know women should not be athletic or women should not have a certain kind of you know physicality. yeah. आपको कभी ऐसे comments मिले या आपको क्या लगता है जब लोग बोलते हैं कि अरे a female athlete like they make fun or they put negative comments कि अरे ये ऐसे क्यों दिख रही है या वैसे क्यों दिख रही है, you know they have an opinion on how a female everything, athlete you know. should look. आपको क्या लगता है उसके बारे में? सी हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्रिकेट या आप किसी भी स्पोर्ट्स में जब खेलते हो तो आपको यू हैव टू फिट लाइक फिट इनफ टू प्ले. सो आपको डेली वर्कआउट्स करना पड़ता है, आपको रूटीन फॉलो करना पड़ता है, आप ईटिंग के बारे में सोचते हो तो आपकी बॉडी वैसे बन जाती है प्रॉबेबली. सो जब थोड़ा बन जाता है तो आप ड्रेस भी थोड़ा सा, जैसे कि मैं तो नहीं पहनती हूँ पंजाबी वैसे, लेकिन जैसे कि ये लोग भी पहन लेते हैं तो थोड़ा सा लुक लाइक लिटिल डिफरेंट है ना. हाँ बल्कि लाइक सो हाँ मसल्स दिखते हैं थोड़े से. Muscles में क्या Of course. प्रॉब्लम है यार? आप किसी को भी fight में तो मैं आप तीनों भी बुलाऊंगी. मेरे साथ ही घूमने वाली. प्रॉब्लम क्या है इसके मेरे होते हैं, you know, muscles. तो लोगों को शायद वो दोनों तरफ से बोलते हैं. लोगों का तो काम है कहना, तो क्या कर सकते हैं. तो Like लोगों ने एक बना के रखा है कि स्टीरियोटाइप कि एक औरत को लड़कियां ऐसे- ऐसे हाँ। शेप में होना चाहिए, मोटे नहीं होना चाहिए ज्यादा. एंड दिस एक ये ऑपोजिट एक साइड भी है कि थोड़ा सा इफ देयर यू नो थोड़े से मोटे वगैरह हो या सो उसमें भी था कि ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये ऐसे कैसे हो सकती है, इसका वेट कम करना चाहिए. अभी उनको नहीं पता होता है कि बैकग्राउंड हार्डवर्क कितना होता है, क्या होता है, कितनी सारी चीजें होती है. सेम तरीके में जैसे आप बोल रहे हो, आप लोग रोज ट्रेन करते हो, आपका ट्रेनिंग शेड्यूल कोई और जो कमेंट कर रहा है देख ले, उनसे 10 मिनट भी नहीं होगा, यू नो. जिस तरह से आप लोग एक्सरसाइज रूटीन है या जो आपका वर्कआउट रेजिमेंट है या प्रैक्टिस है, तो उससे जो आपने फिजिकल बॉडी जो बनाई है, इट इज अ अकम्प्लिशमेंट, यू नो. इट्स नॉट समथिंग के लोग देख के बोले कि अरे ये ऐसी क्यों लग रही है, ऐसे लग रही है क्योंकि उसने बहुत मेहनत किया है वैसे लगने के लिए. तो जब यू नो लोग उस पे कमेंट करते हैं कि आपको डाउट होता है कभी, या कॉन्शियस फील होते हो जब लोग बोलते हैं कि अरे आपका बिल्ड ऐसा है, आप थोड़ा ज्यादा एथलेटिक लग रही हो, जब ये सारे कमेंट्स आते हैं तो डू यू फील कि ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे आप भी डाउट करने लगते हो कि अरे, और डू यू टेक इट टू हार्ट? बेसिकली मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, क्या अपना करियर है, हमें कहाँ जाना है, किस बैकग्राउंड से आए हैं, क्या चीज़ें हम लोगों ने फेस करी है. सो आई रियली डोंट थिंक कि मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है. उनको फील्ड पे बुला दो आप तीनों के साथ, बैट पकड़ने के लिए मैं काम बॉलिंग नहीं करें. आई फील कि ये लाइक, और ये भी जो पूरा हम जिस चीज के बारे में बात करें जो कि है ट्रैश द ट्रैश टॉक, जो लोग कई लोग कमेंट्स फॉर द सेक ऑफ राइटिंग नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं, यू नो, लाइक दे आर कि अच्छा हमें आज नेगेटिविटी फैलानी है तो वो फैलाएंगे, यू नो. तो हाउ कैन वी, मतलब एज ऑडियंस, मतलब हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, एज एथलीट्स जो आप लोग पोस्ट करते हो या पढ़ते हो, लाइक हाउ कैन यू ट्रैश द ट्रैश टॉक, मतलब उसको नेगेटिविटी को हम कैसे हटा सकते हैं सोशल मीडिया से, यू नो. जो ये लोग हैं वो जब बस ये सोच ले कि ये अगर मैं उनको बोल रहा हूँ, ये वही चीज़ अगर मेरे को कोई बोलेगा या मेरे पर ये चीज़ बीतेगी
तो मुझे कैसे फील होगा, तो उस चीज़ से आई थिंक ये सब कम हो सकता है. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स नॉट जस्ट मतलब क्रिकेट में नहीं होता, आई थिंक हर फील्ड में होता है ना. आई थिंक स्पेशली औरतें सबसे बड़ी टारगेट्स हैं सोशल मीडिया पे व्हेन इट कम्स टू नेगेटिविटी और ट्रोलिंग और हेट कमेंट्स. आई थिंक आप तीनों को देख के मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है कि शी इज लाइक आई डोंट केयर अबाउट पीपल, शी इज लाइक आई डोंट केयर. लोगों को जो वो एटीट्यूड मुझे भी अडॉप्ट करना है. आई थिंक कि जो भी लोग देखेंगे इसको और आप तीनों को देखेंगे, आई थिंक कि उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा उससे कि दे डोंट केयर. लाइक आप लोग इतना लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम लोग खेल के हमारे दम पे आए, तो आप जो भी बोल दो हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है. लाइक आई नीड टू अडॉप्ट You दिस should also, एटीट्यूड. yeah, आई थिंक यहाँ पे 2 दिन और रुकना पड़ेगा हम लोगों के साथ. because you've also fought through those Yeah. doubts in your mind कि यार Yeah. मैं कर पाऊंगी या नहीं, या something you started सबने, something yeah. new without any experience, and when the point that you're here now, that itself is an achievement. And I don't think people who have commented on your post have also like half of the achievements what you have done, what you have fought through and come alive. So Yeah. I think just be like Poonam. Yeah, I swear, like आपसे Don't care मैं about 20% people. कॉन्फिडेंस भी ले लूँ ना, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी. I swear.